سابق صدر پرویز مشرف طویل علالت کے بعد دبئی میں انتقال کر گئے۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف دبئی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ سفارتی ذرائع نے سابق صدر کے انتقال کی تصدیق کر دی۔ 1964 میں پاکستان کی بحری افواج میں شامل ہوئے اور 1965 اور 71 کی جنگوں میں شرکت کی۔ 12 اکتوبر 1999 کو انہوں نے بحیثیت آرمی چیف اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں گرفتار کر لیا تھا اور ریفرینڈم کے انعقاد کے بعد صدر منتخب ہوئے تھے۔ کشمیر اور پاکستان دو قلب یک جان۔ کئی دہائیوں سے بھارتی مظالم کا سامنا کرتے نہتے کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے عزم لیے قوم آج بھی یوم یکجہتی کشمیر منا رہی ہے۔ ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے تقاریب اور سیمینار ہوں گے جن میں قابض فورسز کی بربریت کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہر سال 5 فروری کو پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کرتے ہیں۔ گزشتہ 75 سال سے بھارت نے جموں و کشمیر پر اپنا ناجائز قبضہ جاری رکھا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کے بعد بدترین رخ اختیار کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو پاکستان اور کشمیریوں نے یکسر مسترد کر دیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ حق خود ارادیت کشمیریوں کا حق ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بہادر کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے بھارت پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے مبصرین، صحافیوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بلا روک ٹوک داخلے کی اجازت دے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ بھارت جموں و کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ جب تک کشمیری بھارتی مظالم کا شکار ہیں پاکستان کبھی چین سے بیٹھے گا نہ خاموش تماشائی بنے گا۔ کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔ پاکستان کشمیری عوام کے غیر متزلزل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔
WBO यूथ वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर उस्मान वजीर ने पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। दुबई में उस्मान वजीर यूथ वर्ल्ड टाइटल का दिफा करने में कामयाब रहे। टाइटल फाइट में उस्मान वजीर ने थाईलैंड के बॉक्सर क्रून क्लिंग को शिकस्त दे दी। उस्मान वजीर ने फाइट जीतने के बाद कहा कि अपनी जीत पेशावर सानहे के शोहदा के नाम करता हूं। उन लोगों ने हमारे लिए जाने दी, वो बेगुनाह मारे गए। खानेवाल में M4 मोटरवे पर शामकोट इंटरचेंज के करीब एक मुसाफिर वैन डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 12 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने हादसे में जाँ बहक होने वालों की लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। NIH की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,493 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 17 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.38% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि कौमी यकजहती कश्मीर पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुजफ्फराबाद आमद। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ। नाज़रीन आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज़ाद जम्मू कश्मीर के मौका पर मुजफ्फराबाद आमद है। इस वक्त उनको पुरतबाक तकरीब के आगाज में सलामी दी जा रही है। ये मनाजिर आप बराह रास्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। नाज़रीन आपको बताएं कि यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुजफ्फराबाद आमद है। इस सिलसिले में उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश इस वक्त किया जा रहा है। ये मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नाज़रीन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुजफ्फराबाद आमद है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मुजफ्फराबाद पहुंच चुके हैं और इस वक्त उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। नाज़रीन आपको बताएं कि यौम यकजहती कश्मीर पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुजफ्फराबाद आमद। इस वक्त उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। तकरीब का आगाज के वक्त इस वक्त उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके हमरा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद हैं। नाज़रीन आपको बताएं कि यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुजफ्फराबाद आमद। इस वक्त उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त देख सकते हैं। उनके हमरा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ तवील अलालत के बाद दुबई में इंतकाल कर गए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। सफारती जराए ने साबिक सदर के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। 1964 में पाकिस्तान की बड़ी फौज में शामिल हुए और 1965 और 71 की जंगों में शिरकत की। वो आर्मी स्टाफ एंड कमांड कॉलेज कोयटा के ग्रेजुएट थे। 7 अक्टूबर 1998 को बड़ी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ के मनसब पर फाइज हुए। 12 अक्टूबर 1999 को उन्होंने बहैसियत आर्मी चीफ इस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और रेफरेंडम के इनेकाद के बाद सदर मुंतखब हुए थे। 2001 से 2008 तक सदर पाकिस्तान के ओहदे पर बराजमान रहे। असम्बलियों ने भी इस फैसले की तौसीक कर दी थी। ताहम 9 साल बाद परवेज मुशर्रफ फौज के सरबराह के ओहदे से
28 नवंबर 2007 को सबकदोश हो गए थे और दुबई चले गए। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ तवील अलालत के बाद दुबई में इंतकाल कर गए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। सफारती जराए ने साबिक सदर के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। 1964 में पाकिस्तान की बड़ी अफवाज में शिरकत की और 1965 और 71 की जंगों में शिरकत की। वो आर्मी स्टाफ एंड कमांड कॉलेज कोयटा के ग्रेजुएट थे। 7 अक्टूबर 1998 को बड़ी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ के मनसब पर फाइज हुए। 12 अक्टूबर 1999 को उन्होंने बहैसियत आर्मी चीफ उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और रेफरेंडम के इनेकाद के बाद खुद सदर मुंतखब हुए। यौम कश्मीर के हवाले से आपको बताएं कि कश्मीर और पाकिस्तान दो कलब यकजान है। कई दहाइयों से भारतीय मुजालिम के सामना करते नहत्ते कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े होने का अज़म लिए कौम आज यौम यकजहती कश्मीर मना रही है। पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाले मंगला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई और सुबह 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आज आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का खसूसी इजलास होगा जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे। मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से तकारीर और सेमिनार होंगे जिनमें काबिज फोर्सेस की बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातें अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में UNO की करारदादों के तहत कश्मीर में इस्तवाब राय कराने के मुतालबे पर मुश्तमिल याददाश्तें पेश करेगी। आपको एक बार फिर आगाह करें कि कश्मीर और पाकिस्तान दो कलब यकजान है। कई दहाइयों से भारतीय मुजालिम का सामना करते नहत्ते कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े होने के अज़म लिए कौम आज यौम यकजहती कश्मीर मना रही है। पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाले मंगला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई और सुबह 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आज आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का खसूसी इजलास होगा जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ यकजहती का इयादा करते हैं। गुज़िश्ता 75 साल से भारत ने जम्मू और कश्मीर पर अपना नाजायज कब्जा जारी रखा। यौम यकजहती कश्मीर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम के बाद बदतरीन रुख इख्तियार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम को पाकिस्तान और कश्मीरियों ने यकसर मुस्तरद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पाकिस्तान और दुनिया के लिए शदीद तशवीश का बाइस है। शहबाज शरीफ का कहना था कि भारतीय इक़दाम आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी हैं, कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, भारतीय वहशियाना इक़दाम को आलमी फोरम्स पर उजागर करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि भारत पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और कश्मीरी अवाम के साथ किए गए वादों की पासदारी करेगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश किया है। ISYR ने यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का हक है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बहादुर कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करना होगा। ISPR का कहना था कि इंसानी हकूक़ की पामाली और जुल्म व तशद्दुद कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को नहीं दबा सकती। इसी हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करें कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश किया है। ISPR ने यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का हक है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बहादुर कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। ISPR का कहना था कि इंसानी हकूक़ की पामाली और जुल्म व तशद्दुद कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को नहीं दबा सकती। और मकबूजा वादी कश्मीर के हुर्रियत पसंद रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि गुज़िश्ता 75 साल से भारतीय फौज कश्मीरियों पर जुल्म व बर्बरियत जारी रखे हुए है। हमारा एक मुतालबा है कि हक़ खुद इरादियत दिया जाए। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता 30 सालों से पाकिस्तानी कौम भारतीय अफवाज के जुल्म जबर का शिकार है।
کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن منا رہی ہوں، لیکن گزشتہ 75 سالوں سے بھارت مظالم کی نئی داستانیں رقم کر رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کی شکر گزار ہوں کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہر سال پاکستانی عوام کی جانب سے ایک مضبوط پیغام دنیا کو دیا جاتا ہے، لیکن کب تک ہم یہ دن منائیں گے؟ کشمیریوں کو اب آزادی ملنی چاہیے، مشال ملک نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی عدالت میں بھارت سے کشمیریوں کی نسل کشی پر جواب مانگے۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ کشمیری عوام کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے بھارت پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے مبصرین، صحافیوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بلا روک ٹوک داخلے کی اجازت دے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ہم کشمیری بہن بھائیوں کو بھارتی قبضے کے خلاف کئی دہائیوں پر محیط مزاحمت کے دوران بے لوث قربانیاں دینے پر بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام اپنی کشمیری بہن بھائیوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ بھارت جموں و کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ جب تک کشمیری بھارتی مظالم کا شکار ہیں، پاکستان کبھی چین سے بیٹھے گا نہ خاموش تماشائی بنے گا۔ 7 دہائیوں سے بھارتی قابض افواج نے کشمیریوں پر مظالم ڈھائے ہیں اور انہیں ان کے حق سے محروم رکھا ہوا ہے۔ آج مقبوضہ جموں و کشمیر دنیا کے سب سے زیادہ فوجی تعیناتی والے علاقوں میں سے ایک ہے، جہاں 9 لاکھ سے زیادہ قابض بھارتی افواج تعینات ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیری مسلسل خوف میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ بھارتی فورسز کی طرف سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں طاقت کے اندھا دھند استعمال اور ماورائے عدالت قتل کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیریوں کو غیر قانونی حراست، تشدد اور جائیدادوں کی ضبطگی کا سامنا ہے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں ختم کرنا ہوں گی۔ بھارت آبادیاتی ڈھانچے میں تبدیلیوں سمیت 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو واپس لے اور کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔ پاکستان کشمیری عوام کی غیر متزلزل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بھارت جموں و کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ جب تک کشمیری بھارتی مظالم کا شکار ہیں، پاکستان کبھی چین سے نہ بیٹھے گا نہ خاموش تماشائی بنے گا۔ 7 دہائیوں سے بھارتی قابض افواج نے کشمیریوں پر مظالم ڈھائے ہیں اور انہیں ان کے حقوق سے محروم رکھا ہوا ہے۔ آج مقبوضہ جموں و کشمیر دنیا کے سب سے زیادہ فوجی تعیناتی والے علاقوں میں سے ایک ہے، جہاں 9 لاکھ سے زیادہ قابض بھارتی فوج تعینات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی فورسز کی طرف سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں طاقت کے اندھا دھند استعمال اور ماورائے عدالت قتل کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیریوں کو غیر قانونی حراست، تشدد اور جائیدادوں کی ضبطگی کا سامنا ہے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ختم کرنا ہوں گی۔ بھارت آبادیاتی ڈھانچے میں تبدیلیوں سمیت 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو واپس لے اور کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔ پاکستان کشمیری عوام کی غیر متزلزل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ خانیوال میں M4 موٹر وے پر شام کوٹ انٹرچینج کے قریب ایک مسافر وین ڈیوائیڈر سے جا ٹکرا گئی۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ حادثے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 12 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو ٹیموں نے حادثے میں جاں بحق ہونے والے مسافروں کی لاشوں اور زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ حادثے کا شکار بدقسمت مسافر وین حافظ آباد سے علی پور جا رہے تھے۔
इसी हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करें कि खानेवाल में M4 मोटरवे पर शाम कोट इंटरचेंज के करीब एक मुसाफिर वैन डिवाइडर से टकरा गई। रेस्क्यू जराये का कहना है कि हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 12 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने हादसे में जाँ बहक होने वालों की लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये ने यह भी बताया कि हादसे का शिकार बदकिस्मत मुसाफिर वैन हाफिजाबाद से अलीपुर जा रही थी। बात करें कोरोना वायरस के हवाले से तो NIH की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4493 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 17 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.38% रही है। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर ज़िलाई और डिवीजनल इंतजामिया मुल्तान की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। इस बारे बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ कमर जहां। जी कमर, अपडेट कीजिएगा। मुल्क भर के दीगर इलाकों की तरह मुल्तान में भी डिवीजनल और ज़िला इंतजामिया मुल्तान की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर कश्मीर में जारी भारतीय जारहाना मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। एहतजाजी मुजाहरों में सिविल डिफेंस, महकमा तालीम, रेस्क्यू 112 ज़िलाई और डिवीजनल इंतजामिया के साथ साथ सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदगान ने भी जो है वो कसीर तादाद में शिरकत की है। शुरका का कहना है कि कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम के खिलाफ जब तक भारत की जानिब से मजालिम जारी रहेंगे तब तक जो है वो एहतजाजी मुजाहरे जारी रहेंगे। जब तक कश्मीरी अवाम को इसके मुकम्मल हकूक नहीं दे दिए जाते तब तक जो है वो 5 फरवरी का दिन मुल्क भर में पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के तौर पर मनाते हैं। साहिवाल शहर में भी आज का दिन मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र, मुख्तलिफ सियासी और गैर सियासी तंजीमों ने अपने कश्मीरी भाइयों से इज़हार के तौर पर मनाया। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फ़हीम सिद्दीकी अपनी इस रिपोर्ट में। पर भारतीय खून शाम के मजालिम सारी दुनिया के सामने हैं। किस बेरहमी बेदर्दी से आज़ादी का नाम लेने वालों पर जुल्म किया जा रहा है। आज़ादी का नारा दबाया जा रहा है, मगर मोमिन तो बेतेग भी लड़ता है। महत्ता कश्मीरियों की आवाज़ भारतीय खून शाम दबाने में नाकाम रहा है। कश्मीरी डे कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए मनाया जाता है। साहिवाल शहर में कश्मीर डे बड़ी जोशो जज्बे से मनाया गया। तमाम मजहबी सियासी तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर अपने पुरजोश तकारीर और शमूलियत से इज़हार यकजहती किया। भारत उन पर जुल्म सितम कर रहा है, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। इंशाल्लाह उनको एक दिन कश्मीर को छोड़ना पड़ेगा। कश्मीरियों की यकजहती का दिन है जो कि पूरी कौम बड़ी जोशो खरोश से मना रही है। इंशाल्लाह एक दिन हम अपने मकसद में कामयाब होगी और इसको हासिल करके रहेंगे। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वो दिन दूर नहीं जब हम मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत नामंजूर, सालिम भारतीय अफवाज के मुजालिम नामंजूर। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मजलूम कश्मीरियों के हक खुद इरादियत पर पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से डी चौक तक सरकारी सतह पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है पार्लियामेंट हाउस के बाहर और यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारी मासूम बच्चियाँ खड़ी हैं जो कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठा रही हैं, उनके लिए नारे लगा रही हैं। देखते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगी। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से आप? हम अपना टाइम निकाल के हम यहाँ पर आए पार्लियामेंट हाउस के बाहर और हम कश्मीर लेंगे और रह के रहेंगे और हमारा कश्मीर जिंदाबाद। आप क्या कहेंगी कश्मीरों के बारे में? कश्मीर हमारा, हम उसे लेकर रहेंगे। और आप बहुत प्यारे प्यारे कपड़े पहने में, क्या कहेंगे कश्मीर के बारे में? कुछ कहें। कश्मीर को हम आज़ाद करेंगे। चाहे कि उनके साथ हमेशा के लिए वहाँ दस रखे और हमेशा के लिए उनकी इन हाथ रखे ताकि उनको हम हौसला बढ़ाने के लिए इन निकले और पाकिस्तान को हमेशा और पाकिस्तान
क्योंकि पाकिस्तान और कश्मीर एक ही है। हम तमाम मुसलमान हैं और मुसलमान की कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कश्मीर के साथ हमेशा के लिए दिल रहम के साथ रहे। छोटे छोटे बच्चियों ने कश्मीर का गेटअप किया हुआ है, कश्मीर के रंग में रंगी हुई हैं और कश्मीरियों के साथ। इस्लामाबाद में अवामी शिकायत और आला हुकाम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का आर्जी और मुस्तकिल तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने जुमा बाजार वहाराको के करीब CDA टीम के बहराकोट बाईपास प्रोजेक्ट साइट पर तामीराती काम को बिला तातुल जारी रखने को यकीनी बनाने के लिए आर्जी तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन किया। शहरों की खूबसूरती में रुकावट, इंक्रोचमेंट, बाजारों में चलने फिरने वाले आम शहरियों का चीना बहाल। हमारे साथ मौजूद हैं राहिब सोमरो। जी राहिब सोमरो, क्या कहती है अवाम इस पर? जी, इस वक्त मौजूद हैं हम डहर की सिटी के मैन मिल्लत बाजार में, जहां पर इंक्रोचमेंट की भरमार। उस हवाले से आइए एक हमारे साथ मौजूद शहरी हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। इंक्रोचमेंट सिर्फ मिल्लत रोड का मसला नहीं है, इंक्रोचमेंट पूरे शहर का मसला है। आप मेन बाजार में चले जाएं, आप जो है ना कॉलेज साइड पे चले जाएं, आप दाद रोड पे चले जाएं, आप सिनेमा रोड पे चले जाएं, आप कहीं भी जाएं, सिर्फ मिल्लत रोड का इशू नहीं है। इनको जो है ना ये 15-15 रुपए जो मिलते हैं ना, और ये बाकायदा या मंथलियाँ यहाँ से लेते हैं ये लोग, तो इशू तो ये कब से चला आ रहा है। ये हर जो भी टाउन ऑफिसर आया हो, जो भी अपना चेयरमैन आया हो, ये तब से ये इशू चल रहा है। और ये इसमें जो है ना देखें ना, ये रक्षा स्टैंड है आपके सामने, हमारे जज साहबान ने बड़ी कोशिश की है कि यहाँ पे जो है ना रक्षे खड़े ना हो। 100 मरतबा उन्होंने रक्षे हटवाए, फिर भी वहाँ खड़े रहते हैं। ये माफिया हैं, माफियाओं से कौन टक्कर लेगा? आप और हम नहीं ले सकते। ये जब तक पूरी आवाम नहीं लेगी टक्कर, आप और हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। जी, इनका कहना था कि इस वक्त जो एक बहुत बड़ी माफिया यहाँ पर काम कर रही है, खुदारा इस रश को, इस भीड़ को बचाने के लिए यहाँ पे क्लिनिक भी हैं, जो इसको महदूद खत्म करने के लिए कोई बेहतर इकदाम करने चाहिए। खबर शामिल करेंगे हाफिजाबाद से, जहां के असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुन्नवाज चदड़ अपनी अवामी खिदमात पर अवाम में बेपनाह मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। अफसरशाही को छोड़कर शहरियों में मिलजुल कर काम करना ही क्यों पसंद है, ये और मजीद बहुत कुछ बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद भट्टी हैं। जी राशिद, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पूरे ज़िला में अक्सर से बहुत मकबूल हो चुके हैं, क्योंकि इनका तरीक़ेकार जो है वो बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। इनको फील्ड वर्क करना ही क्यों पसंद है, अफसरशाही छोड़कर दिन रात गलियों बाज़ारों में आम शहरियों के साथ घुल मिल कर काम करना क्यों ही अच्छा लगता है, ये हम जानने के लिए हमारे साथ हैं असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुन्नवाज चदड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो? खैरियत से? जी सर, अफसरशाही को छोड़कर शहरियों के दरमियान एक आम आदमी की तरह काम करना, यही क्यों आपने चॉइस किया? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें इस निजाम से नवाजा और ऐसे असाइनमेंट दी कि जिसके अंदर हम डायरेक्ट पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इंश्योर कर सकते हैं। सेकंड ये कि क्योंकि हमारा बेसिक जो पर्पज़ है वो सिविल सर्विस है, पब्लिक सर्विस है, तो पब्लिक को हम रियलाइज़ करवाएं, उनको कॉन्फिडेंस दें कि हम आपके लिए ही हैं और हम आप में से ही हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब आप पब्लिक के साथ अपना कम्युनिकेशन गैप कम कर देते हैं और आप उनके साथ उनको ये महसूस करवाते हैं कि हम आपकी खिदमत के लिए हैं और हम जो है वो आप में से हैं, हम कोई अलग से कोई मखलूक नहीं है, तो इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। और डायरेक्ट जब कम्युनिकेशन होती है, जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, तो तभी कोई पब्लिक, कोई बंदा आपके पास आके अपने ग्रीवेंसेस जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता सकता है, वो अपने दिल की बात आपको बता सकता है, आप उसकी बात को समझ सकते हैं, और जब आप उसकी बात समझते हैं तो तभी आप उसको हल कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि जब ये कुछ फॉल्स प्राइड और फॉल्स प्रोटोकॉल्स और एक फॉल्स ईगो का शिकार होते हैं कि जिसकी वजह से एक अननेसेसरी प्रोटोकॉल की वजह से कॉमन पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन गैप जो बढ़ होता है,
اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر پبلک کے ساتھ آپ کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. اور میرا یہ سمجھنا ہے کہ آپ اچھے ایڈمنسٹریٹر اور تب بھی بن سکتے ہیں, اچھے سول سرونٹ تب بھی بن سکتے ہیں جب آپ پبلک کے ساتھ اپنا جو کمیونیکیشن ہے اس کو آپ اسٹیبلش کریں. سر, مارکیٹ میں بہت سی روزمرہ کی ایسی اشیاء ہیں جن کا تعلق اے گریڈ سے نہیں ہوتا, وہ تھرڈ فورتھ گریڈ کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن عام شہری کو جو ہے وہ اس کی پرائزز وہ اے گریڈ کے حساب سے لگائی جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے اپنے آپ کو؟ ہاں جی بالکل, یہ ایک اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اس چیز پہ ایمان ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی وعید ہے کہ جو ملاوٹ کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک ناسور ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ایک کیٹیگری کی جو چیز ہے بی کیٹیگری کی چیز کو اس کے اندر آپ مکس کر دیتے ہیں, جس کا بہت نقصان ہوتا ہے. میں آپ کو چند ایک ایگزامپلس دیتا ہوں. فار ایگزامپل, ہم نے یہاں سے مختلف جو پیٹرول پمپ سے میں نے شروع کیا, ہم نے ان کے مختلف پیٹرول پمپ سے سیمپل لیے, سیمپل لے کر ان کے ہم نے ویریفائی کروایا, ان کی ٹیسٹنگ کروائی. 2-3 ہمارے پاس آئیڈینٹیفائی ہوئے کہ جہاں پہ وہ جو ہمارے پاس ایرانی پیٹرول ہے یا جو 2 نمبر جو پیٹرول ہے وہ سیل کر رہے تھے. تو ہم نے جب ان کے سیمپل نیگیٹو آئے تو ہم نے ان کو سیل بھی کیا, ان کو ہم نے ہیوی فائن بھی کیا اور ان کا لائسنس بھی کینسل کیے, اور اوپر ہم نے اوگرا کو لکھ کے بھی بھیجا کہ ہم ان کو الاؤ نہیں کریں گے. اس طرح سے ایک جگہ پر ہم نے فرٹیلائزر DAP ہم نے ایک جگہ سے میں نے پکڑی, اس کے اندر بھی یہی سینیریو چاہ رہا تھا کہ وہ 2 نمبر جو DAP ہے وہ کسان بچہ لے کے جاتا تھا, اس کی فصلیں خراب ہو رہی تھی. کمپلینٹ میرے پاس آئی, ہم نے اس کو اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھرو, اپنے میڈیا والے جو بھائی ہیں ان کے تھرو ہم نے ان چیزوں کو ڈگ آؤٹ کیا, آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کے خلاف ہم نے ایکشن لیا. ان کی بھی ہم نے یہاں پر جو سیل تھی اس کو بند کیا. اس کے علاوہ پھر ہم نے یہاں پہ جو ناپ تول کے حوالے سے, جو میجرمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس جو مختلف گیجز ہیں اس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہم نے پیٹرول پمپ سے سٹارٹ کیا. پھر ہم نے جو ہماری جو منڈیاں ہیں مختلف نا, گلا منڈی ہے, ٹھیک ہے نا, ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ DIG آپریشنز لاہور افضال احمد کوثر نے ٹرانسفر پوسٹنگ کمیٹی کی سفارشات پر شہر لاہور کے 84 SHOs کو تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دیے, جبکہ 36 افراد کو پولیس لائن رپورٹ کرنے کا حکم. DIG آپریشنز افضال احمد کوثر نے 84 تھانوں کے SHOs تبدیل کر دیے. پولیس لائن سے انسپیکٹر آصف عطا SHO اسلام پورہ تعینات, سب انسپیکٹر شبیر رضا ٹاؤن شپ سے SHO لوئر مال تعینات, سب انسپیکٹر وقاص افسر چوکی FC کالج سے SHO نیو انارکلی تعینات, سب انسپیکٹر عرفان محمود اشرف SHO داتا دربار تعینات, انسپیکٹر محمد جاوید ڈولفن ہیڈ کوارٹر سے SHO بھاٹی گیٹ تعینات, سب انسپیکٹر عامر انجم SHO ٹبی سٹی تعینات, انسپیکٹر حمزہ نواز ہڈیارہ سے SHO مستی گیٹ تعینات, سب انسپیکٹر شہریار علی SHO یکی گیٹ تعینات, سب انسپیکٹر محمد بلال پولیس لائن سے SHO رنگ محل تعینات, انسپیکٹر اختر حسین وحدت کلونی سے SHO لوہاری گیٹ تعینات, جبکہ انسپیکٹر حافظ عبید اللہ قلعہ گجر سنگھ سے SHO نولکھا تعینات کر دیے گئے. انسپیکٹر محمد نعیم اختر رائیونڈ سٹی سے SHO موچی گیٹ تعینات, جبکہ انسپیکٹر سردار محمد افضل بخبان پورہ سے SHO شاہدرہ تعینات, سب انسپیکٹر خرم شہزاد مناوا سے SHO شاہدرہ ٹاؤن تعینات, سب انسپیکٹر فاروق اعظم پولیس لائن سے SHO شفیق آباد تعینات, سب انسپیکٹر عثمان یونس SHO راوی روڈ تعینات, سب انسپیکٹر خالد پرویز قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ سے SHO بادامی باغ تعینات کر دیے گئے. سب انسپیکٹر محمد شہزاد پولیس لائن سے SHO گوال منڈی تعینات, سب انسپیکٹر محمد یونس شالیمار سے SHO لاریڈا تعینات, انسپیکٹر قمر عباس شاہدرہ سے SHO شاد باغ تعینات کر دیے گئے. انسپیکٹر ریحان انور مسلم ٹاؤن سے SHO ریس کورس تعینات کر دیے گئے. انسپیکٹر ظہیر الدین جوہر ٹاؤن سے SHO سیویل لائنز تعینات کر دیے گئے. انسپیکٹر عارف ایوب پولیس لائن سے SHO قلعہ گجر سنگھ تعینات کر دیے گئے. انسپیکٹر محمد عاصم جنوبی چھاونی سے SHO گڑی شاہو تعینات, سب انسپیکٹر عظیم انور ٹبی سٹی سے SHO والٹن روڈ تعینات, انسپیکٹر محمد جمیل SHO مزم تعینات کر دیے گئے. انسپیکٹر آصف ادریس مصری شاہ سے SHO شالیمار تعینات کر دیے گئے. سب انسپیکٹر خضر حیات ہربنس پورہ سے SHO گجر پورہ تعینات, سب انسپیکٹر عاصم حمید گہنا سے SHO مغل پورہ تعینات کر دیے گئے.
लेडी सब इंस्पेक्टर जिबी मंसूर, सरवर रोड से एसएचओ विमेन रेस कोर्स तैनात। सब इंस्पेक्टर हसन रजा हाशमी नसीराबाद से एसएचओ डिफेंस बी तैनात। इंस्पेक्टर शकील खुर्शीद हियर से एसएचओ डिफेंस सी तैनात। इंस्पेक्टर वजीउल हसन डॉल्फिन हेडक्वार्टर से एसएचओ फैक्ट्री एरिया तैनात कर दिए गए। इंस्पेक्टर असद महमूद कुरैशी पुलिस लाइन से एसएचओ सरवर रोड तैनात। सब इंस्पेक्टर असद इकबाल फैसल टाउन से एसएचओ जनूबी छायनात तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर तहसीन नजम सत्तू कतला से एसएचओ शालमाली छावनी तैनात कर दिए गए। इंस्पेक्टर इज्जतुल्लाह पुलिस लाइन से एसएचओ मुस्तफ़ा आबाद तैनात। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सदीक पुलिस लाइन से एसएचओ अकबरी गेट तैनात। सब इंस्पेक्टर जाहिद महमूद पुलिस लाइन से एसएचओ पुरानी अनारकली तैनात। इंस्पेक्टर अख्तर हुसैन पुलिस लाइन से एसएचओ बरकी तैनात कर दिए गए। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर अदनान रशीद एसएचओ हेयर तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर आमिर सुहेल गाजियाबाद से एसएचओ हडियारा तैनात कर दिए गए। इंस्पेक्टर वकास हुसैन बुखारी शाहबाग से एसएचओ बखबानपुरा तैनात। सब इंस्पेक्टर तैमूर अब्बास पुलिस लाइन से एसएचओ हरबंसपुरा तैनात कर दिए गए। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद बरकी से एसएचओ मनावा तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर कादिर अली डॉल्फिन स्क्वाड से एसएचओ बाटापुर तैनात कर दिए गए। इंस्पेक्टर आतिफ इकबाल शेराकोट से एसएचओ मॉडल टाउन तैनात। सब इंस्पेक्टर इमरान अनवर पुलिस लाइन से एसएचओ लियाकताबाद तैनात। इंस्पेक्टर हमाद हसन सांदा से एसएचओ गार्डन टाउन तैनात। इंस्पेक्टर फारूक इफ्तिखार डॉल्फिन हेडक्वार्टर से एसएचओ फैसल टाउन तैनात। इंस्पेक्टर आसिम रफी डीआईजी ब्रांच से एसएचओ इशरा तैनात। सब इंस्पेक्टर वकास अली एसएचओ शादमान तैनात। इंस्पेक्टर इमरान खान पुलिस लाइन से एसएचओ गुलबर्ग तैनात। इंस्पेक्टर बाबर अशरफ सिविल लाइन से एसएचओ गालिब मार्केट तैनात। इंस्पेक्टर रेहान जिया शफीक आबाद से एसएचओ कोट लखपत तैनात। इंस्पेक्टर मोहम्मद रजा पुलिस लाइन से एसएचओ कान्हा तैनात। इंस्पेक्टर शबीर हुसैन डॉल्फिन हेडक्वार्टर से एसएचओ निश्तर कॉलोनी तैनात। सब इंस्पेक्टर अली आदिल समनाबाद से वादत कॉलोनी तैनात। इंस्पेक्टर रफीउल्लाह फैक्ट्री एरिया से एसएचओ नवाकोट तैनात। सब इंस्पेक्टर अदील अंजुम रावी रोड से एसएचओ मिल्लत पार्क तैनात। सब इंस्पेक्टर वसीम उबैदुल्लाह पुरानी अनारकली से एसएचओ गुलशन रावी और इकबाल तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर यासिर बशीर गुलशन इकबाल से एसएचओ समनाबाद तैनात। सब इंस्पेक्टर हाफिज शुजाउल्लाह एसएचओ गुलशन रावी तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद ग्रीन टाउन से एसएचओ सांदा तैनात। सब इंस्पेक्टर आसिफ जावेद पुलिस लाइन से एसएचओ इकबाल टाउन तैनात। इंस्पेक्टर नासिर हमीद लियाकताबाद से एसएचओ शेराकोट तैनात। इंस्पेक्टर ताहिर महमूद पुलिस लाइन से एसएचओ मुस्लिम टाउन तैनात। इंस्पेक्टर इब्रार हैदर सुंदर से एसएचओ रायवेंड सिटी तैनात। सब इंस्पेक्टर आसिफ अली नवाब टाउन से एसएचओ मांगा मंडी तैनात। इंस्पेक्टर खुदा बख्श चूंग से एसएचओ सुंदर तैनात। इंस्पेक्टर शफी खान कोट लखपत से एसएचओ चूंग तैनात। इंस्पेक्टर हसन रजा गार्डर टाउन से एसएचओ नवाब टाउन तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर जुल्कुरनैन नाज नवाकोट से एसएचओ सत्तू कतला तैनात। इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान कमर डॉल्फिन हेडक्वार्टर से एसएचओ सब्जा हजार तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जुबैर अहमद एसएचओ हंजरवाल तैनात। इंस्पेक्टर जवेद इकबाल मजंग से एसएचओ टाउनशिप तैनात कर दिए गए। इनके अलावा सब इंस्पेक्टर रजा अब्बास मुस्तफा टाउन से एसएचओ जौहर टाउन तैनात। सब इंस्पेक्टर हमाद हसन सब्जाजार से एसएचओ ग्रीन टाउन तैनात। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फारूक दाता दरबार से एसएचओ कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट तैनात। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सलमान एसएचओ मुस्तफा टाउन तैनात कर दिए गए। इंस्पेक्टर आतिफ जुल्फिकार पुलिस लाइन से एसएचओ गाजियाबाद तैनात। इंस्पेक्टर रिजवान लतीफ डिफेंस सी से इंचार्ज डीआईजी बी ब्रांच तैनात कर दिए गए। डीआईजी ऑपरेशंस का तमाम अफसरान को फौरी नए मुकाम तैनाती पर रिपोर्ट करने का हुक्म, जबकि दूसरी जानिब 36 एसएचओस को पुलिस लाइन क्लोज कर दिया गया। क्लोज होने वालों में शेख खालिद फारूक, राना नईम यासीन, मोहम्मद सजाद, काशिफ यूसुफ, हुसैन जुबैर, वकास, रफी मकसूद रहमान, मोहम्मद सफदर, मकसूद गुजर, शाहिद असगर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अहमद खालिद महमूद, मुदस्सरुल्लाह खान, नबीला कोसर, इमरान खान, मोहम्मद शहजाद, आसिम जहांगीर, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद जुहेब, वसीम अख्तर, अबूजर अमजद, मोहम्मद इशफाक, मोहम्मद इकराम और राना मुजाहिद शामिल है।
नाज़रीन, आपको बताएं कि CBD पंजाब बुलेवार्ड और कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग मंसूबे पर अंडरपास बैरल्स की छत के कंक्रीट पोरिंग शुरू हो गई है। CBD पंजाब बुलेवार्ड और कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग मंसूबे पर अंडरपास की बैरल्स की खुदाई के बाद कंक्रीट पोरिंग शुरू कर दी गई है। कलील वक्त में अंडरपास बैरल्स की छत के लिए स्टील फिक्सिंग मुकम्मल करके कंक्रीट पोरिंग शुरू कर दी गई है, जबकि दूसरी तरफ बुनियादी अंडरपास की खुदाई के अमल भी जारी है। CBD पंजाब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन का कहना है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर तामीराती काम तेजी से जारी है। कंक्रीट पोरिंग के साथ हैवी मशीनरी की मदद से खुदाई और मिट्टी निकालने का काम भी तेजी से जारी है। रिकॉर्ड मुद्दत में मंसूबे को मुकम्मल करके एक मिसाल कायम करेंगे। CBD पंजाब इंतजामिया PSL से पहले तमाम शाहराहों को फ़ाल करने और अहलियान लाहौर को रिलीफ फराहम करने अपने आज़म पर कायम है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर निगरान सूबाई वज़ीर पंजाब बिलाल अफजाल भी मंसूबे की तामीराती पेशरफ्त का जायजा ले रहे हैं। खबरें शामिल करें खेलों की दुनिया से। आपको बताएं कि WBO यूथ वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर उस्मान वजीर ने पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। दुबई में उस्मान वजीर यूथ वर्ल्ड टाइटल का दिफा करने में कामयाब रहे। टाइटल फाइट में उस्मान वजीर ने थाईलैंड के बॉक्सर को शिकस्त दे दी। दुबई में 10 राउंड पर मुश्तमिल टाइटल फाइट के 7वें राउंड में उस्मान वजीर ने हरीफ बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। उस्मान वजीर ने फाइट जीतने के बाद कहा कि मैं अपनी जीत पेशावर सानेह के शोहदा के नाम करता हूँ। उन लोगों ने हमारे लिए जाने दी, वो बेगुनाह मारे गए। उन्होंने कहा कि चाहता हूं हमारा पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी से दूर और खुशहाल रहे। हम सब ने मिलकर अपने मुल्क को बेहतर करना है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स और खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।